السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم یہاں پر ترجمۃ القرآن 10th کلاس کی اسکیم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سارے بچوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کی اسکیم جو ہے یا پیپر پیٹرن ہے اسے ڈسکس کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پیپر میں وہ کس طرح سے کوشچنس کو اٹیمپٹ کریں گے، اور پھر اس طرح سے ہم انہیں جو امپورٹنٹ آیات ہیں، آیات کا ترجمہ ہے، وہ بھی یہاں پر ضرور ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ اس میں ساری باتیں بتائی جائیں گی، امپورٹنٹ لانگ کوسچنز، امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز، اور اسی طرح سے آپ کا پیپر پیٹرن بھی۔ تو آپ نے اس میں ہر چیز کو دھیان سے سننا ہے، اسکپ مت کریے گا۔ پھر اسکپ کرنے کے بعد آپ اینڈ پہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں فلاں چیز کے بارے میں پتہ نہیں چلا، فلاں چیز کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ تو آپ نے اسے کمپلیٹ واچ کرنا ہے، کچھ بھی اسکپ نہیں کرنا۔ تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پیپر اسکیم، پیپر پیٹرن، امپورٹنٹ پیپرز، امپورٹنٹ لانگ کوسچنز، امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز، MCQs، اور اسی طرح سے آپ کو جو گیسٹ پیپر ہے وہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن، ٹوٹل مارکس اس پیپر میں ہمارے پاس 50 ہوتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں، حصہ مروزی اور حصہ انشائیہ۔ تو اسٹوڈنٹس، حصہ مروزی میں ہمارے پاس 10 MCQs ہوں گے، ہر MCQs کا 1 مارک ہوگا، اور اسی طرح سے 10 MCQs کے ٹوٹل 10 مارکس ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے MCQs کو بہت اچھے سے لرن کرنا ہے، بہت دھیان سے MCQs مارک کرنا ہے اور ببل فل کرنا ہے۔ جب آپ MCQs فل کرتے ہیں تو ببل فلس کرتے ہیں، آپ اس میں بہت زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں۔ آپ کو اچانک سے یاد آتا ہے نہیں، اس کا آپشن بی کریکٹ نہیں تھا، آپشن ڈی کریکٹ تھا، تو آپ آپشن بی کو کراس کر کے ڈی کو فل کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے بار بار اٹیمپٹ نہیں کرنا، ایک ہی بار جو کریکٹ آنسر ہوگا بس اسی کو آپ نے فل کرنا ہے، اور یہ مسٹیک نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ اس طرح سے دو بار اٹیمپٹ کریں گے تو پھر وہ رانگ کنسیڈر ہوگا اور آپ کا کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حصہ انشائیہ۔ حصہ انشائیہ میں ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، کوئی سے 5 سوالات حل کریں اور ان کے جوابات دیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل 8 کوسچنز ہوتے ہیں، 8 میں سے ہم نے 5 سالو کرنے ہیں۔ ہر شارٹ کوسچن کے 2 مارکس ہیں، تو اس طرح ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پر 10 مارکس بن جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کوسچنز کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، کسی بھی چھوٹی سی آیت کا ترجمہ ہو جاتا ہے، چھوٹی سی حدیث ہے اگر اس کا کوئی ترجمہ ہو جاتا ہے، تو یا پھر کسی بارے میں جیسے نماز ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں کوئی آیات لکھنی پڑ جاتی ہیں، آیات کا ترجمہ لکھنا ہے، یا کوئی حدیث یہاں پر مینشن کرنی پڑ جاتی ہے، تو آپ نے ہر چیز کو شارٹ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھے سے لرن کرنا ہے۔ نیکسٹ اب ہم چیک کریں تو یہاں پر ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، کوئی سے 5 الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو 5 الفاظ کے یہاں پر ہم معنی لکھیں گے، تو ٹوٹل 8 ہوں گے، 8 میں سے 5 ہم نے یہاں پر ان کے جو میننگ ہے وہ ضرور لکھنے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سمپلی ہر میننگ کا ہمارے پاس 1 مارک ہوگا، تو اس طرح ٹوٹل یہاں پر ہمارے پاس 5 مارکس ہوں گے۔ یہ بہت ایزی ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ میننگ کہاں سے آتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، جب ہم امپورٹنٹ لانگ کوسچنس کو یا پھر ہم امپورٹنٹ آیات کو ڈسکس کریں گے، تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو الفاظ معنی ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھیں۔ یہ موضوع بھی آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا کہ کس طرح سے کن کن موضوع پر یہاں پر نوٹ لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 10 مارکس کا کوسچن ہوگا، 2 ہمارے پاس یہاں پر سوال ہوں گے، اور ہم اس میں سے صرف ایک کوسچن کو ہی اٹیمپٹ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہمارے پاس اسکیم شارٹ کوسچنس کے لیے، اور اس لانگ کوسچن کے لیے اب ہم ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر لانگ کوسچن نمبر 5 ہے، مطلب سوال نمبر 5، کوئی سے 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ لکھیں۔ تو یہاں پر بیسیکلی یہ ہمارے پاس ہوتا ہے الف، الف کے بعد بے، اس طرح آیات لکھی ہوتی ہیں، اور پھر جیم، دال، اس طرح نیکسٹ یہ سارا مینشن ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی سے 3 آیات کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔
हर तर्जमे के 5 नंबर होते हैं, तो इस तरह 3 5 ज़ार 15 होंगे। टोटल हमारे पास 5 होंगे, 5 में से हमने 3 का तर्जमा लिखना है, तो उस तरह से फिर आपके 15 मार्क्स बन जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो ये हमारे पास हैवी होता है, जिसमें 15 मार्क्स होते हैं। मसला ये है कि जो आयात हैं वो स्टूडेंट्स को टफ लगती हैं, उनकी ट्रांसलेशन याद नहीं होती। कुछ ये कुरान पाक का तर्जुमा है और आप इसे खुद से तो बिल्कुल नहीं बना सकते कि आप खुद से चीज़ें ऐड करते रहेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो तर्जुमे के लिए आपको बहुत यहाँ पर मेहनत करनी है, और तर्जुमा बेसिकली कलाम पाक है, तो हम इसमें कोई भी रद्दो बदल नहीं कर सकते, कोई भी चेंजिंग्स नहीं कर सकते, या खुद से कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते। जो जैसे लिखा है उसको हमने एज इट इज़ लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपने तर्जुमा लिखते हुए इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम किसी भी तरह से तर्जुमा लिख लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर गुनाह भी तो देते हैं ना, अगर हम यहाँ पर गलत किस्म का तर्जुमा लिखेंगे सिर्फ अपने मार्क्स हासिल करने के लिए। तो आपने बहुत बेहतर और जो आपने बुक में पढ़ना है उसी तर्जुमे को यहाँ पर शो करना है। तो अब हम यहाँ पर जो अहम आयात हैं या फिर अहादीस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर आपको ये भी इन्फॉर्म करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन था अल्फाज मायनी वाला, उसमें अल्फाज मायनी बेसिकली आते कहाँ से हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर अल्फाज मायनी, तर्जमा और फिर और लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास सूरतुल अनाम है। यहाँ पर चेक करें, हर सूरत के स्टार्ट में ऐसे सूरत का तारुफ लिखा होता है, और उसके बाद सूरत कौन सी है, मक्की है या मदनी है, और ये किस पारे में है, इसमें कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं, इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। उसके बाद इसका जो मरकज़ी मौजू है उससे मुतल्लिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ़लाँ सूरत का मरकज़ी मौजू क्या है, या फ़लाँ सूरत के मज़ामीन क्या हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन बातों को बहुत अच्छे से याद रखना है। हर सूरत के बारे में ये याद करना है कि उसकी कितनी आयात हैं, उसके कितने रुकू हैं, और वो किस पारे में है, और वो मक्की है या मदनी। ये जो 4 बातें हैं हर सूरत की आपने याद करनी है, क्योंकि किसी भी सूरत से रिलेटेड ये बात पेपर में ज़रूर पूछी जा सकती है। तो मरकज़ी मौजू हर जो सूरत है उसका थोड़ा बहुत सेम होता है, लेकिन आपने उसमें ये बात याद रखनी है कि कैसे एक सूरत का मरकज़ी मौजू दूसरी सूरत के मरकज़ी मौजू से मुख्तलिफ है। इसमें कुछ सूरतों के बारे में ये भी पूछा जाता है कि इस सूरत का नाम ये क्यों है, तो उसके लिए ख़ास क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हर सूरत के लिए कि इस सूरत का ये नाम क्यों है। अल्लाह ताला ने बेसिकली उस सूरत में उस हवाले से कोई ना कोई बात ज़रूर रखी होती है, इस वजह से उस सूरत को उसी का नाम दे दिया जाता है, उस ख़ास वाक़ये का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बुनियादी मज़ामीन हैं इस पे आपने बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, और बुनियादी मज़ामीन को अच्छे से याद करना है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो मश्क है, मश्क में जो एमसीक्यूज़ हैं तो आपने इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है। एमसीक्यूज़ कहाँ से भी बनते हैं, या ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि फ़लाँ सूरत मक्की है या मदनी, या उसमें कितनी आयात है, या वो किस पारे में है, इस तरह की कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ के तौर पे आ जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास मुख्तसर जवाबात हैं। हर सूरत के स्टार्ट में 2 पेज लिखे होते हैं जो हमारे उर्दू में लिखे होते हैं, उसी में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मौजूद होते हैं। तो आपने उसे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन हैं वो यहीं से याद आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास देखें एक्सरसाइज में सबसे ऊपर अल्फाज मायनी है, यही अल्फाज मायनी है जो आपके पेपर में आते हैं 5 नंबर के। देखें ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। हर सूरत में वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 होंगे हमारे पास। ये आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर में अल्फाज जो हैं वो आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन है, दर्ज झैल कुरानी अल्फाज के मायने लिखें। तो आपने इस क्वेश्चन को भी लाजमी करना है। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से, इन्हीं अल्फाज मायने में से आपके मायने आएंगे पेपर में। हर चैप्टर में या हर सूरत के बाद एक्सरसाइज में ये हमारे पास क्वेश्चन होता है। आप समझें कि यही जो है इन्हीं में से कोई ना कोई मायने आपके पेपर में ज़रूर आएगा। इनसे हटके बिल्कुल नहीं आते, यही वो अल्फाज मायने हैं जो आपके पेपर में आते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास 3 आयात हैं, उनका बामुहावरा तर्जुमा लिखना है। तो स्टूडेंट्स वैसे तो देखा जाए तो माशाल्लाह से सूरतें इतनी लंबी-लंबी हैं, उसमें इतनी सारी आयात हैं, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 3 जो सूरतें हैं, ये आयात हैं, यही इम्पोर्टेंट हैं।
तो आपने इन्हीं आयात को जो एक्सरसाइज में दी गई हैं इन पर फोकस करना है, इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है और आयात के जो तर्जमा है उसकी लिख कर प्रैक्टिस किया करें ताकि आपकी गलतियां जो हैं वो कम से कम हों। तो स्टूडेंट्स, हर सूरत के एंड पर जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास जितने भी अल्फाज मायने होंगे आपने वो भी करने हैं और उसके साथ साथ जो आयात होंगी उनका आपने बामुहावरा तर्जमा ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर तफसीली सवाल होता है, सूरत नाम के बुनियादी मज़ामीन पर नोट लिखें, या पेपर में इस तरह से भी ये आ जाता है कि सूरत नाम के मौजू लिखें। तो मौजू या बुनियादी मज़ामीन दोनों एक ही बात है, सिर्फ लफ्ज़ चेंज हो गया है, बाकी बात एक ही है कि सूरत नाम के मौजू पर नोट लिखें। तो आपने उस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आयत ये लिखना है कि ये सूरत मक्की है, ये मदनी, ये किस पारे में है, इसकी कितनी आयत है, कितने रुकू हैं। उसके बाद उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करना है, इस सूरत का ये नाम क्यों लिखा गया। ये जब सारी बातें आप डिस्कस करेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 नंबर का है ये ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका पेपर पैटर्न भी कवर हो गया इस वीडियो में, आपका पेपर भी आपको समझ आ गया कि ये सारा जो पेपर पैटर्न है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, आपने किन किन चीज़ों को याद करना है, किन किन चीज़ों को स्किप करना है। आपने पेपर पे जाने से पहले जो सारी सूरत है उसका तर्जमा सिर्फ उर्दू में रीड करना है ताकि अगर कोई आपको चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आए तो आप उसे लिख सकें। लेकिन आपने जो याद करना है वो सिर्फ चैप्टर के या सूरत के स्टार्ट में, जैसे यहाँ पर सूरत अल अराफ है, इसका पहला पेज है और उसके बाद इसका दूसरा पेज है, आपने बस इन दोनों पेज को अच्छी तरह याद कर लेना है। इसी में से आप सारे क्वेश्चंस भी बना लेंगे, एमसीक्यू होगा तो वो भी आपका बन जाएगा। आपने याद क्या करना है, सिर्फ इस ट्रांसलेशन को, इस तर्जमे को आपने याद करना है। जो एक्सरसाइज के एंड पर मैक्सिमम तीन ही आयात दी गई हैं, तो आपने इन्हीं को बहुत अच्छे से याद करना है ताकि आपका पेपर 100% हो सके। और आपको पता है ये पेपर ऐसा है जिसमें बच्चों के 49-50 तक मार्क्स आ जाते हैं। सिर्फ आपकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और बाकी आपकी जो मटेरियल है पेपर में वो उसका ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन होगी और आपका सारा मटेरियल बहुत अच्छा होगा तो इंशाल्लाह आपके भी 49 to 50 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। तो आपने बहुत मेहनत करनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। सारे कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप मज़ीद नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की कोई भी वीडियो चाहते हैं, उसकी स्कीम, पेयरिंग स्कीम, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या उसके गेस्ट पेपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस सब्जेक्ट की नेक्स्ट स्कीम या फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और पेपर चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।